नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। भारत की तरफ से कुछ हार्ड मैसेजेस गए हैं दुनिया को एंड एक कहीं ना कहीं हमने एक डिक्लेरेशन करी है कि भाई आप जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहे रिकंसिलिएशन और इन चीजों के, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और ये चीज अभी कहीं ना कहीं दुनिया के भी समझ में आ चुकी है और अमेरिका की तरफ से कल कुछ जो स्टेटमेंट्स आए हैं उससे कुछ एक बड़ा क्लियर सा एक नैरेटिव दिखता है कि भारत ने अपना जो मैसेज है वो बड़ा एक्सट्रीमली क्लियरली और बड़े सिंपल वर्ड्स में दिया है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की डेली इनकी जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसके अंदर इन्होंने कुछ मेंशन करा है भारत के बारे में। और आपको यहाँ पर दिखेगा कि किस तरह से जो पुरानी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का आपके तरफ लैंग्वेज होती थी और जो इस टाइम की स्टेट डिपार्टमेंट की लैंग्वेज है उसके अंदर आप फर्क देखिए एंड यू विल काइंड ऑफ रियलाइज हाउ थिंग्स हैव चेंज एंड जिस तरह से काम किया गया है वो बड़ा अलग है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, पूरा नहीं बट वील जस्ट वॉच certain parts of it. From the State Department, we'll send that away for you, but we'll take it from there. Here we go, Sean? Sure. Thanks. Two topics. India, Pakistan. Yeah. The Secretary made calls yesterday to the Indian External Affairs Minister and the Pakistani Prime Minister. I know you issued readouts of that, but what's your take on how things have gone since then? Were there asks of the two sides? Do you think his calls for de-escalation have been taken to heart? Again, the details of what has transpired in those conversations, spoke with the foreign ministers of both countries, of course, but we've also spoken to not just the Secretary, but there's been communication at all levels in that regard. And there is a few more things, though, that I do have for you, and I want to make sure I get to them as we watch this unfold. It's not unfamiliar to us regarding the region. Obviously, it does continue to evolve, right? That's something we've all seen. We are monitoring closely. Yesterday, for those of you who were unaware of this, the Secretary spoke with Indian External Affairs Minister Jay Shankar and Pakistani Prime Minister Sharif. As the President articulated to Prime Minister Modi last week, the United States stands strong with India against terrorism, and Prime Minister Modi has our full support. The Secretary encouraged both countries to work toward a responsible solution that maintains long-term, I should say, let me correct that, a responsible resolution that maintains long-term peace and regional stability in South Asia. We continue to be in touch with the governments of both countries, as I mentioned, at multiple levels. And that's what I have for you in the sense of the general overview after those phone calls. You want to follow up on that, and I see all of you. We'll continue. But just to follow up, and I said that there's been since then. I mean, the calls to de-escalate. Do you think those are being heeded? And are there particular asks, particularly of the Pakistani side? I know that all I can say is that, and what has been conveyed here is that there's constant involvement. This government is in constant communication. We are asking for a responsible resolution from both parties, and beyond that, there's nothing I can give you any other. So बड़ा क्लियर है कि भैया दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। उनको बिल्कुल भी मन नहीं है कि भैया यार इन चीजों के अंदर घुसें। एंड इनको क्योंकि पता चल रहा है, पता तो पहले से है कि भाई ये पाकिस्तानीज आर बिहाइंड ऑल दिस स्टफ। और ये बड़ा क्लियरली एक चीज दिखती है जेडी वांस के स्टेटमेंट में। जो एक छोटा सा स्टेटमेंट है, इसको जरा देख लेते हैं, देन वी कैन एक्चुअली पुट एवरीथिंग इनटू पर्सपेक्टिव। सो लेट्स लिसन इन। You worried about India and Pakistan? Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. Now that's pretty clear. उनको पता है कि भाई इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा और किस तरह करेगा। वो एक ही चीज बोल रहे हैं, यार डोंट लेट दिस एस्केलेट इनटू अ रीजनल वॉर। रीजनल वॉर का ये बड़ा क्लियर मीनिंग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है यार लेट नॉट अदर प्लेयर्स गेट इन्वॉल्व कि भाई चाइना भी घुस गया, ये भी घुस गया, वो भी घुस गया। लेट्स नॉट डू दैट। इसको एक बड़ा रीजनल वॉर की तरह मत लेके जाइए। वी अंडरस्टैंड कि आपको इनको एक हिट मारनी है और उसके अंदर हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। एंड दैट इज समथिंग विच इज प्रीटी क्लियरली कमिंग आउट। नाउ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से जयशंकर जी से बात करी गई। अब दोनों लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन मार्को रूबियो ने अपने लेवल से ऊपर बात करी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट शहबाज शरीफ एवरीबडी नोज इज जस्ट लाइक द फॉरेन मिनिस्टर। एक फेस है पाकिस्तान का, जहां पर एक्चुअल काम तो आर्मी चीफ अपने आप ही करते हैं। तो कल शहबाज शरीफ ने बात करी मार्को रूबियो के साथ, जिसका स्टेटमेंट्स आए, जहां पर मार्को रूबियो ने ये चीज बोला, वी अर्ज यू टू काइंड ऑफ वर्क विद द इंडियंस एंड कुछ करके रेजोल्यूशन लेके आइए इस चीज का, अदरवाइज यू गाइज आर गोइंग टू बी इन ट्रबल।
एक चीज और बोली उनको कि भाई साहब यू नीड टू कंडेम दिस। आप लोगों ने अभी तक ये नहीं बोला कि जो इनोसेंट लाइव्स वहां पर गई हैं उसका आपने अभी तक कुछ रिग्रेट तक नहीं दिया है। तो जैसे ही ये चीज हुई उसके बाद इनके जो इशाक डार या व्हाटएवर हिज नेम इज, ये बाहर आते हैं और ये ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. No cause or objective can possibly justify taking lives of innocent people. This is the national policy, and this is the Islamic policy. Killing of a human being tantamount, as per Quran, killing of the entire humanity. And saving a life tantamounts to saving the entire humanity. So we believe in that. Pakistan. सो देयर यू गो। यहां पर प्रेशर तो पड़ना शुरू हो गया है और ये चीज हमको समझ में आ रही है। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर आप एक चीज देखें पाकिस्तान की इस टाइम पे, जो ही इज एक्सपेक्टिंग, ऑब्वियसली उसको कुछ एक्सपेक्टेशन है कि भारत की तरफ से एक बड़ा अटैक आएगा। एंड जैसे मैंने कल रात को भी कवर किया था, यू कैन सी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नर्वसनेस अमंग्स पाकिस्तानीज। और नो टाइम पे नो टाइम इशू कर रहे हैं वेयर दे आर बेसिकली नॉट फायरिंग एनीथिंग। इन्होंने अभी तक एक भी अरेबियन सी के अंदर इन्होंने बोला कि भाई नो टाइम है, ये है वो है, इन्होंने अभी तक एक भी मिसाइल वहां पर उस रीजन के अंदर फायर नहीं करी है। इसी बीच मैं आपको ये दिखाता हूं किस तरह का नो टाइम बना है, तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस। तो आपको पता चलेगा कि यू लुक एट द नॉर्दर्न रीजन एंड सदर्न रीजन, दोनों तरफ नो टाइम इनको लगता है कि ये दोनों जगह से आके भारत ने इनको ठोकना है। सो दे आर अ बिट नाउ स्टार्टिंग टू गेट अ बिट वरीड। अभी तक तो मजाक बना रहे थे कि भारत नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बट अभी इनको रियलाइज हो रहा है कि भाई नहीं करना, नहीं, ये कब कर रहा है उसकी बात है। एंड यहाँ पर देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली एक चीज बताऊं कि इनका जो रिस्पॉन्स रहा है, ये लोग तो काफी हद तक कवर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 जी सब कुछ अलग है, सब कुछ हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग ऐसे काम नहीं करते, ये वो। बट आप सबको पता है कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जो दिया था कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्ट फॉर 3 डेकेड्स। अब इसके ऊपर स्काई न्यूज ने बिलावल भुट्टो से बात करी, ठीक है, बिलावल भुट्टो से बात करी और उसको ये बड़ा क्लियरली सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपकी तो एक हिस्ट्री है, आप तो ये करते रहते हो। तो चलिए सुनते हैं वो क्या कहते As हैं। far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. We went through the Islamization, militarization of our society. But as a result of what we suffered, we also learned our lessons. We've gone through internal reforms in order to address this problem, not only for us, but also as concern of the international community. As far as India's accusations are concerned, it would be helpful if India was to provide specific, concrete evidence with Pakistan and with the international community. As far as what the defense minister said, सो वही है कि भैया हमको एविडेंस दे दो, हमको एक और डॉसियर बना दो, हम उसके बाद कुछ करेंगे। अब ये सिविलियन लीडरशिप इतनी यूजलेस है। मैं आपको दिखाता हूं एक और वीडियो के अंदर, आज मैं जरा कंपाइलेशन करी है टू एक्चुअली शो यू अ पर्टिकुलर थिंग। ये है इनकी सिविलियन लीडरशिप, और जब इनसे सवाल पूछा जाता है, और देखिएगा क्या सवाल पूछा जाता है, आपको समझ में आएगा सिविलियन लीडरशिप की क्या हालत होती है प्रेस मीडिया के सामने, किस तरह DGISPR उसको एक किस तरह ट्रीट करते हैं। जी सर, मैं सैयद जफर हुसैन मेरा नाम है सर, दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है। सर आप पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए। सर गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नजर नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं, क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को इत्मीनान मिले और कोई कौम से खिताब कर लें, बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है सारी सिचुएशन को डील करने के लिए। एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। फिर आपने ये कहा कि करारदाद सेनेट ने पास कर लिया, ये कौम की आवाज़ है। मैं पूछना चाहूँगा क्या 15-20 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है? आपका ये देखिए जी, ये आया नोट बाहर, ठीक है, आपने देखा किस तरह से नोट हैंडओवर किया गया, Political state. DGISPR ने किस तरह से नोट हैंड किया गया, और अब जो लिखत में सब जवाब इनको मिला है Well taken. Let me answer. देखें भाई, जहां तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, या तो शायद आपको मौका नहीं मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट आफ्टर अराइवल फ्रॉम अंकारा इन इस्लामाबाद 23rd evening, we have been in touch throughout, and very next morning National Security Committee of Pakistan meets his state. ठीक है, तो ये तो हालत है इनकी। एंड यहाँ पर ऐसी हालत है कि इन लोगों ने अभी DGISI को NSA बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये पता चल रहा है कि साहब शहबाज शरीफ को अभी उसकी पैंटें गीली होनी शुरू हो गई हैं, ही इज चेंजिंग ट्राउजर्स एवरी हाफ एन आवर। तो भैया उस पता है आर्मी को कि ये कल्टी होके भाग जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है।
ये क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है. So they're indeed a bit worried कि यार how do we handle this civilian leadership. पहले भी जब भी भारत के साथ ऐसे पंगे हुए हैं, सिविलियन लीडरशिप के साथ हमारे इश्यूज हुए हैं, एंड we have had problems. Now यहाँ पर आखिर में मैं आपको बताऊं कि भाई पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को एक वार्निंग आई है, और ये वार्निंग आई है मौलाना फजलुर रहमान डीजल से. ठीक है जी, डीजल उसको सब बोलते हैं. ये सुनिए, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि फजलुर रहमान जो हैं वो एक पाकिस्तानी डीप स्टेट के परमानेंट हिस्से हैं. इन्होंने कुछ चीजें बोली हैं जो पाकिस्तानी आर्मी को समझ में आएगी. और याद करिएगा, इसके ऊपर हमने पहले भी कवरेज करी है कि फजलुर रहमान ने जब बोला था कि भाई बलोचिस्तान के 3-4 रीजन गए, दे आर एक्चुअली गॉन. उन्होंने ये भी बोला था कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कई रीजन गए, और वो भी गए जा चुके थे. तो सुनिए क्या कहते हैं. और हम यहाँ पर अपने मामला को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं. कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए. ये बात याद रखें कि जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान. अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था. हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो. किस बात पर? सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं, अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है, सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी. यहाँ पर वही आप एक नैरेटिव देख रहे हैं कि दोबारा से ये जो फजलुर रहमान हैं दोबारा से वही चीज बोल रहे हैं कि भाई साहब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप किस आग के साथ खेल रहे हो. एंड ये मैं आपको बता दूं, दिस इज अ वेरी क्लियर वार्निंग फ्रॉम द पाकिस्तानी डीप स्टेट कि भैया आसिम मुनीर तुम सुधर जाओ, तुम्हारे पास हमने तुमको 3 वार्निंग दे चुके हैं अभी. सो मेरे हिसाब से द पाकिस्तानी सिचुएशन बड़ी खराब है. इंडिया की डिप्लोमेसी इस टाइम पे ऊपर है, एंड आई डोंट थिंक आसिम मुनीर विल बी एबल टू एक्चुअली हैंडल दिस गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे हिसाब से इनके अंदर सिविल वॉर टाइप की सिचुएशंस आने की बहुत बहुत संभावना है. सो लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज फॉरवर्ड. बट तब तक वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.